جی السلام جناب علیکم ورحمۃ قادیانی اللہ۔ مربی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ جی والسلام، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کا شکر ہے، چلو اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ہونا چاہیے۔ وہ میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا 2 دن سے، عبدالرزاق صاحب کی بھی دیکھی ہے اور ان کی بھی دیکھی ہے، اپنا علی شہزاد صاحب کی۔ تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سب خیر خیریت ہے؟ کیا مقصد ہے ان سب چیزوں کے پیچھے؟ تھوڑا سا اصلاح فرمائے، تھوڑی سی آپ کا تنبیہ نام فرمائے۔ کیا ہے؟ مبارک احمد۔ مبارک صاحب۔ مبارک صاحب، جی ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹ اور سچ کی نشاندہی کرنا، کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، آپ سمجھدار ٹھیک۔ آدمی ہیں، اور پہلا کوئی قادیانی مجھے ٹکرا ہے کہ جو سمجھ لیں جس کو بات کرنے کا کوئی انداز ہے، جو تحمل سے میری بات سن رہے ہیں۔ آگے کا مجھے پتا نہیں کہ آگے آپ کیا کرتے ہیں، قادیانیت دکھائیں گے نہیں، کہ نہیں۔ وہ تو خیر آپ کے انداز گفتگو پر منحصر ہے کہ اگر آپ مجھ سے غلط طریقے سے گفتگو کریں گے تو پھر مجھے بھی وہی انداز اپنانا پڑے گا، بالکل لیکن آپ جب بالکل، اچھے طریقے سے جب تک بات کریں گے میں ویسے ہی بات ہاں کروں گا آپ طریقہ کے ساتھ۔ یہی ہے، طریقہ یہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، جی جی علی بالکل۔ شہزاد صاحب کو کال کی، آتے ہی انہوں نے سر پہ چڑھائی کر دی اور بد کلامی شروع کر دی۔ عبدالرزاق صاحب، ان کی تو میں نے خیر ان ٹھیک کی ہے، ویڈیو سنی تھی، اور جہاں تک عبدالرزاق صاحب کی بات ہے، اتفاق ایسا ہوا تھا کہ میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی جاب کا یونیفارم پہن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ جاتے ہیں جاب پر 7 بجے شام کو، جی اور میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ ابھی آپ یہ مفتی مبشر صاحب ہیں، ابھی آپ ان کی کال نہ اٹھائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں یار، ایک اچھی شخصیت ہے، علمی شخصیت ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس کی کال نہ اٹھاؤں۔ جب میں سو رہا تھا اس وقت تو اور بات تھی، لیکن اب یہ اخلاقاً غلط بات ہے، جب میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے کال اٹھانی چاہیے، اس کی تھوڑی سی بات مجھے سننی چاہیے۔ لیکن پھر جب میں نے دیکھا کہ یار ان کا ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے، آپ کو شاید اندازہ نہیں تھا، آپ کی کال آئی تھی غالباً پاکستانی 3:45 کے قریب، اور یہاں ملیشیا میں 6:45 ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ ہمارا 3 گھنٹے کا فرق ہے، ہم آپ سے 3 گھنٹے آگے ہیں ملیشیا میں نا۔ جی جی ابھی آپ کے یہاں پر ٹائم ہو رہا ہے صبح کے 7:15 پاکستان میں۔ مجھے نہیں پتا آپ ابھی سعودیہ میں ہیں یا پھر پاکستان میں ہیں، لیکن پاکستان کے وقت کے حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ ابھی وہاں پر 7:15 ہو رہے ہیں، یہاں پر 10:15 ہو رہے ہیں۔ جی ٹھیک۔ تو وہ ٹائم تھا ڈیوٹی پر جانے کا، تو اسی لیے وہ آپ کو بار بار پکار بھی رہے تھے مفتی صاحب میری بات سنو، لیکن آپ نے جب نہیں سنا تو پھر انہوں نے آپ کو، کیونکہ میرے خیال میں آپ کی تقریباً عمر میرے خیال ہے زیادہ سے زیادہ 45 یا 50 سال ہوگی، وہ ماشاءاللہ سے تقریباً ان کی عمر 60 سال ہے، 60 سال کے قریب ہیں۔ تو وہ آپ کو پھر اسی انداز میں کہ ایک بچے کو بولتا ہے کہ یار مبشر میری بات تو سن، مبشر ہیلو ایک منٹ میری بات سن۔ انہوں نے پھر تھوڑا سا، ظاہر سی بات ہے، وہ پھر جب ایک بندہ سامنے والا بات سن ہی نہیں رہا، اپنی بولی جا رہا ہے، سامنے والے کی سن ہی نہیں رہا، اخلاقی طور پر آپ نے کال کی ہے تو تھوڑا سا جس کو کال کی اس کی مصروفیات کو دیکھنا پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ آپ مسلسل بولے جا رہے تھے، تو پھر انہوں نے آپ کو آگے سے غصے میں بولا کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ نوکری پیشہ لوگ ہیں، ہم لوگوں کو تھوڑی چندے آتے ہیں، یا ہم لوگوں کو تھوڑی کوئی اس طرح کی امداد ملتی ہے کہ جس کی وجہ کر کے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی نہیں یار دیر سویر ہو بھی جائے گی، 2 گھنٹے ایکسٹرا بھی لگ جائیں گے تو کوئی بات نہیں، ہمیں تو جا کر جواب دینا ہوتا ہے نا، کوئی مزدوری کرتے ہیں حلال کماتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے آپ سے کہا کہ بھائی میں نے جانا تھا، تو آپ کی مہربانی ہے بس کرو، ابھی بعد میں کرتے ہیں بات، لیکن آپ نے وہ سنی نہیں، اس لیے ان کو مجبوراً غصے میں پھر کال کاٹنی پڑی، آپ نے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی۔ چلو کوئی نہیں، وہ تو آپ کی محبت ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ ہمارے مخالف ہیں۔ اب آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا، کیا گزارش بات یہ جو ہے تھی کہ کیا؟ میں نے آپ کی بات بڑے تحمل سے سن لی ہے۔ بالکل امید بڑی مہربانی ہے آپ کی، بہت اچھے طریقے سے سنی ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ امید یہ ہے کہ آپ عاجز کی بات بھی بڑے تحمل سے، ٹھنڈے بالکل دل دماغ سے سنیں۔ بالکل سر، اچھا، گزارش یہ ہے کہ ثابت ابھی حال آپ بالکل فرمائیں۔ نے فرمایا کہ ہم کون سا چندے وغیرہ لیتے ہیں، یا کون سا مطلب حرام کماتے ہیں، ہم تو حلال کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں دن اور رات، اور اتنی تگ و دو کے بعد بچوں کے لیے کچھ کمائی کا سامان لے کے جاتے ہیں۔ لیکن بالکل بالکل دیکھیں، ابھی آپ نے گفتگو کی ابتدا کے اندر ہی یہ بات کی تھی کہ آپ کو کیا یعنی فائدہ ہے، یا کیا آپ کا مقصد آپ نے کہا کیا مقصد ہے ان جی چیزوں کا، کہ آپ قادیانیت کے بارے میں دن اور رات کام کرتے ہیں، اور کیوں یہ کرتے ہیں؟ مقصد اب آپ کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ
जिस शख्स को आप अपने मसीह मऊद मानते हैं वो कमाई جی नहीं करते थे, वो मेहनत नहीं करते थे, बल्कि जनाब उन्होंने एक ये आम लफ्जों में बोलें तो दुकान कह लें या वैसे कह लें तो कारोबार कह लें, तो वो चूंकि आपकी किताबों के अंदर भी लिखा हुआ है कि नबूवत करना एक कारोबार है, तो उन्होंने जनाब वो लोगों से पैसे पूसे इकट्ठे करने का एक तरीका बनाया जी, मैं 50 किताबें इस्लाम की तकवीयत के लिए लिखूंगा, तो उसके पैसे जो हैं मुझे एडवांस ही जमा करवा दो। तो बड़ी खतीर रकम उन्होंने इकट्ठी की, तो 25 सालों के अंदर छोटे छोटे 5 रिसाले लिख के वो कहने लगे कि देखो जी 50 और 5 में सिफर का ही एक फर्क है, तो लिहाजा वो वादा पूरा हो गया है। तो आप जरा अखलाकन और इंसाफन बताइएगा, क्या ये आपके मसीह मऊद साहब ने ये अमल दुरुस्त किया था? उनको तो हलाल कमाना चाहिए था, मेहनत मजदूरी करनी चाहिए थी, ये चंदे नहीं उनको लेने चाहिए थे, और बिल फर्ज उन्होंने ये चंदे ले भी लिए तो कम से कम ये हलाल करते, वो 50 जिल्दे लिखते, ठीक है, तो फिर वो समझ में भी आता। अब आप क्या फरमाएंगे इसको? मैं अब यानी कि आप कहना चाहते हैं कि मैं कुछ अर्ज करूं, ये कह रहे हैं? जी जी, आप अर्ज करें, अब आपका टाइम। वही ना, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ पहले ही ना, ताकि ऐसा ना हो कि मैं अगर बोलूं तो फिर आप बोले आप दरमियान में बोल पड़े। जी बस ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि जनाब एक आम इंसान और एक नबी और खलीफा की जिंदगी में फर्क होता है। ठीक है, जैसा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा बने तो वो तिजारत के लिए बाहर की तरफ गए, ठीक है, बाजार की तरफ गए। पीछे से हजरत उमर और एक दो और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन उनको रास्ते में मिले और उन्होंने कहा कि आप किधर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है, अगर मुझे हदीस का हवाला तो नहीं याद, लेकिन आप इस बात की तस्दीक करेंगे, इनकार नहीं करेंगे, और आप इस बात को जानते हैं कि उनके पीछे गए तो उनसे पूछा कि जनाब आप किधर जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं अगर ये तिजारत नहीं करूंगा तो बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। तो आगे से हजरत उमर ने और साथ में उनके जो भी साहबी थे, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने कहा कि जनाब जब अगर आप ये काम करने के लिए जाएंगे तो दीन की सरबराही के लिए जो आपको खुदा ने खलीफा मामूर फरमाया है, जो आपको खलीफा मुंतखब किया है, वो काम कौन सर अंजाम देगा? जो दीन के फैसले करेगा वो कौन करेगा? जो लोगों के मसाइल को हल करेगा वो कौन करेगा? जो लोगों की इस्लाह करेगा वो कौन करेगा? उधर तो फिर कमाई नहीं ना चलेगी, फिर वहां कमाई तो नहीं की जा सकेगी। तो प्यारे मुफ्ती मुबशर साहिब, बात यह है कि खुलफा और अंबिया के जो मसरूफियात हैं उसमें फ़र्क होता है, उनकी ज़िंदगी के अंदर जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने का तरीक़ेकार और होता है, और साथ में जो उनकी जमात होती है ना, जो अंबिया होते हैं ना, वो इस्लाह के लिए जो चंदा जात मांगते हैं ना, नहीं ये नहीं चलाए, पंखा बंद करें, हवा जाएगी इधर, शोर जाएगा माइक में ना, पंखा नहीं चलाए, शुक्रिया। तो जो अंबिया का जो उनकी जो जमात होती है, उनकी इस्लाह के लिए, उनकी तरबियत के लिए जो मुबल्लिगीन और जो लिटरेचर वगैरह शाया करवाने के लिए जो अंबिया और खुलफा जो चंदा मांगते हैं, या इस्लाह के लिए, या पुराने ज़माने में जंग के लिए जो माल वगैरह इकट्ठा किया जाता था, हथियार इकट्ठा किया जाता था, वो और मामलात हैं। आप आजकल की जो हम आम इंसानों की ज़रूरियात ज़िंदगी की जो नौकरियां हैं, कारोबार हैं, उनको उन अंबिया के और खुलफा के मामलात से अगर आप मुआजना करेंगे तो ये मेरे हिसाब से नाइंसाफी है। बहरहाल ये तो हो गई आपकी एक वो बात, और मैंने उसका जवाब दे दिया है। अब मैं असल जो मैंने आपसे बात पहले पूछी थी ना कि मुफ्ती साहब आपका इन चीजों का मकसद क्या है? आया आपका मकसद महज जमात अहमदिया मुस्लिमा की मुखालफत, या उनके जो मानने वाले हैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, उनकी बातों को, उनको बेवक्त कॉल करके, उनको तंग करके, उनकी बातों को सोशल मीडिया पर बिला वजह में अपलोड करना है, या फिर आपका मकसद इस्लाह करना है? एक करेक्शन, हकीकी एक तौर पर सॉरी तो मैं बात काट रहा हूँ, 1 मिनट। ये जी कॉल जी जी अभी फरमाएं। आपने की है, मैंने तो नहीं की। नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जी, तो आज की और बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी मैं अहमदियों की कॉलें हमने रिकॉर्ड की हैं, ये कॉलें खुद करती हैं, आपको गलतफहमी है जनाब। नहीं, आपने मेरे सामने अब्दुल रज़ाक साहब को कॉल की है, ये जी बात नहीं, आप वो गलत कॉल बोली तो कर रहे हैं उन्होंने मेरे की पास। है,
मेरे पास डेटा मौजूद है, मैं उनके साथ ही बैठा मेरे हुआ था। पास रिकॉर्डिंग की थी मौजूद आपने है, कॉल? स्क्रीन रिकॉर्डिंग मौजूद है। चलें आप बात हाँ नहीं बिल्कुल, मैं आपको दिखा दूंगा ना, मैं आपको, जी। मेरे अभी पास अभी आपकी आप कॉल ये रिसीव देखें हुई कि है, कॉल आप ड्यूरेशन। रिकॉर्ड कर रहे हैं और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो ये हम तो कोई आप बात नहीं काम है, करते हैं मैं तो कह रहा हूँ कोई बात नहीं है। आप आपका क्या ख्याल है कि मैं नहीं कर रहा हूँ? बिल्कुल, ये तो हमारा तरीकेकार है, आपका भी और हमारा भी। जब हम ऐसे माशाल्लाह से मुफ्ती साहब से बात कर रहे हो तो ये असूली बात है कि आपकी तरफ से तो मुझे 100% यकीन है कि रिकॉर्डिंग हो रही होगी, लेकिन मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ। मेरी तरफ भी रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जरूरी है, ये एक जरूरी अमल है, कि वरना आप वो मैं मिर्जा अगर साहब के खुदा न चंदे की खास्ता, बात बता रहे थे, वो नहीं बात मैं बात जो है ना मिर्जा 50 साहब के लिख चंदे के की तो बात का मैं 50 जवाब और आपको देकर, 5 का फर्क है, ये अच्छा बताओ। आपने दरमियान में मुझे जिस बात पे टोका था ना, वो बात का मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। अब मैं जो बात कर रहा था वो मैं मुकम्मल कर लूं, जी अगर आपकी जी इजाजत हो? जी जी जी। ठीक है, आपने जो टोका था ना उस बात का मैंने आपको जवाब दे दिया कि कल आपने अब्दुल रजाक साहब को मेरे सामने खुद कॉल की है। अब मैं बात जो कर रहा था ना वो मेरी अब आप बात सुन रहे हैं। आपने कहा था कि बीच में मत बोलिएगा, तामुल से सुनिएगा, लेकिन आपने मुझे एक मरतबा टोका, मैंने उसको कबूल किया, बाहसन दिल मैंने उसको कबूल किया, और फिर अब जो बात मैं कर रहा था वो मैं मुकम्मल करूंगा। मैं वो बात नहीं करूंगा जिस पे आप मुझे लेके जाना चाह रहे हैं। उस बात का मैं आपको चंदे का जवाब दे चुका हूँ कि अंबिया और खुलफा की जिंदगी में नहीं फर्क है, तो वो हमारी जिंदगी 50 में और फर्क है। 5 में सिफर का फर्क का नहीं, अब जवाब आप नहीं फिर दिया। मुझे बीच में टोक रहे हैं, अब आप फिर मुझे बीच में टोक रहे हैं, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई अभी। आप मेरी बात मुकम्मल होने देंगे तो फिर आपका मौका मिलेगा बात करने का। ऐसा तो फिर अब आप गलत काम कर रहे हैं ना, ये तो आपका तरीके का गलत हो जाएगा। फिर आप कहते हैं कि मुझसे गलत तरीके से अहमदी बात करते हैं, और फिर अगर हम बात करें तो आप उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, अपना तरीका आप बयान नहीं करते हैं। ये तो गलत नाइंसाफी है ना मुफ्ती साहब। आप एक तहमुल मिजाज इंसान है, तहमुल मिजाजी से सुने, दूसरे को भी मौका दें और खुद भी बात करें इस तरीके से। मेरा मकसद आपको कॉल करने का भी ये है कि अगर आपका मकसद अहमदियों को बिला वजह के अंदर बात काट छाट के जलील करने का है और उनको बिला वजह के अंदर कोशिश करना जलील करने की, तो ये तो आप इसका फिर अजर आप खुद भुगतेंगे। लेकिन अगर आपका मकसद इस्लाह का है तो मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। उसका तरीकेकार होता है हर चीज का। इस्लाह के लिए आपके तरीके से सिर्फ इस्लाह नहीं होगी, आपने सामने वाले को देखना है कि आखिर वो क्या चाहता है, किस तरीके से उसके साथ बात की जाए। जरूरी नहीं है कि आप ही के तरीके से चला जाए। हर मर्तबा आप अपने तरीके से चल रहे होते हैं, आप अपने सवाल लेकर बैठ जाते हैं। भाई सामने वाले के भी तो इतराजात को दूर किया जाता है कि नहीं किया जाता? ये सिर्फ आपने ही बात करनी है। इस्लाम जब आया था ना, उस वक्त इस्लाम के ऊपर जो एतराज होते थे ना, उसका जवाब दिया जाता था। आपकी नजर में तो हम इस्लाम नहीं है ना, तो अब आपकी जो अकायद है ना उनके ऊपर जो एतराज हो रहे हो ना, आप उसका जवाब देने का आपका हक बनता है। आप हमारे अकायद के ऊपर एतराज करने का फिलहाल हक नहीं रखते हैं, क्योंकि आपकी नजर में हम बातिल हैं, आपकी नजर में हम हक पर नहीं है। अगर हम आपकी नजर पे हक पर हों तो फिर आप हम पर एतराज करें, ठीक है? फिर मानना भी पड़ेगा आपको कि जी ये हक पर हैं तो हम इन पे एतराज करेंगे, ये नया दिन लेकर आए हम इन पर एतराज करें। भाई आपकी नजर में तो हम बातिल पर हैं, मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा गलत किया है, इसका मतलब है नबी की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है मसीह ने जिसने आना था वो आसमान पे बैठा है। तो फिर पहले तो ये चीज देखनी पड़ेगी ना, नबूवत की जरूरत है नहीं है, नबूवत का दरवाजा खुला है नहीं है, मसीह ने आना है वो जिंदा है नहीं है, मसीह फौत हो गया है नहीं है। तो पहले तो इन चीजों को दूर करना पड़ेगा ना मुफ्ती साहब। पहले मिर्जा साहब मसीह मऊद हैं आप मानते हैं, किस तरीके से मानते हैं, क्यों मानते हैं, ये चीजें तो आप बिल्कुल ही अलग दिशा में चल रहे हैं, जो कि तरीक नहीं है। ये मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि अगर आपका मकसद इस्लाह है तो इस्लाह करने के तरीके से इस्लाह करें, ना कि अपने तरीके से इस्लाह करें जो तरीकेकार असूली तौर पर है। वो तरीका जो मुफ्ती मुबशर का या शमसुद्दीन का या इरफान महमूद बुर्ग का है, वो तरीकेकार आप ना अपनाएं, वो तरीका अपनाएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो तरीका अपनाएं जो उनके सहाबा का है, हिकमत से, दानाई से। चढ़ाई करके कोई इस्लाह नहीं हो सकती, आप जितना मर्जी कर लें। लोगों ने यही कहना है आपके सामने, तो कहना है हाँ जी मुफ्ती साहब आपकी बात में समझ में आ गई, लेकिन बाद में कहना यार कितना बदतमीज जाहिल इंसान था। वो चीज हमें नहीं जेब देती है ना। हम चाहते हैं कि आप एक माशाल्लाह सफेद पगड़ी लगाई हुई आपने और इतनी प्यारी सी स्माइली कोनी रख के अपनी साइड पे रखी हुई आपने, इतने प्यारे आप लग रहे हैं, लेकिन आपको पीछे से हम इस तरह बोलें यार देखो कैसा बदतमीज आदमी था, नहीं, दिल नहीं करता। लेकिन बाज़ टाइम काम इस तरह के कर जाते हैं आपके उलमा हजरात कि फिर बंदा मजबूर होता है कहने पे कि यार इसको बात करने की तमीज ही नहीं है। ये बात कर रहा है किसी के इमाम के बारे में, किसी के बुजुर्ग के बारे में, और इस बदतमीजी से आपके मैसेजेस आते हैं, उसके अंदर अजीब किस्म के अल्फाज लिखे होते हैं, दिल नहीं करता पढ़ने का, लेकिन मजबूरी है। क्या करें यार, फील्ड में उतरे हुए हैं, तबलीग के मैदान में उतरे हुए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है जहां हमें फूल मिलेंगे वहां कांटे भी सहने पड़ेंगे मेरे भाई।
اب آپ بات کریں, اگر آپ کا مقصد اصلاح ہے تو اصلاح کے طریقے سے بات کریں, میں آپ سے بات کروں گا, میں نے خود اس لیے کال ملائی ہے. لیکن اگر آپ کا مقصد صرف اور صرف مخالفت کا ہے تو پیارے بھائی وہ تو پھر آپ کرتے رہیں جتنی مرضی, وہ پھر صدیوں تو ہوندی آئی ہے, نبیات مخالفت آئندہ بھی ہوندی رہے گی, تو کچھ بھی نہیں ہونا. پھر گل کرو مفتی صاحب, اجازت آنا. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب, آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور دل کو موہ لینے والی باتیں ہیں, کیونکہ یہ احمدیوں مہربانی. کا پرانا طریقہ ہے کہ گفتگو ایسے دل کو موہ لینے والی کرتے ہیں. تو ٹھیک ہو گیا, ایک اجازت ہے بات کرنے کی چھوٹی سی؟ ابھی تو میں بول لوں نا. نہیں میں صرف جیسے آپ نے ایک اجازت مانگی تھی, میں اجازت جی مانگ رہا ہوں, تاکہ میں نے کہا حساب بھی برابر ہو جائے. بات یہ ہے کہ کیا صرف یہ احمدیوں کا طریقہ اخلاق پیارا رکھنا آپ کا مسلمان, جو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا یہ؟ اگر تو ان کا طریقہ نہیں تھا تو پھر تو آپ ہم پہ اعتراض کریں کہ جی تم لوگوں کا طریقہ. اگر ان کا طریقہ تھا تو پھر اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اس بات کے اوپر کرنا چاہیے آپ کو کہ یار ماشاءاللہ اچھی بات ہے, آپ ہمارے طریقے پہ چل رہے ہیں, آپ اخلاق محمدی اپنا رہے ہیں, آپ پیار محبت سے لے کر چل رہے ہیں, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا, اخلاق حسنہ. آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, مقصد یہ طنز ہے کہ تمہارا طریقہ یہی ہے واردات کا. بھائی تو یہ تو اسلام سکھاتا ہے پیار محبت سے حکمت سے بات کرنا. اگر اس میں طریقہ غلط ہے تو بولیں آپ کہ تمہارا یہ طریقہ غلط ہے. نہیں یار, تمہارا طریقہ بہت اچھا ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دل موہ لینے والا ہے, ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا احمدیوں کا مرزائیوں کا طریقہ یہی ہے. مطلب ڈبل بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مجھے, یہ کیوں کرتے ہیں آپ اس طریقے سے؟ آپ بات کریں. جزاک اللہ جی, آپ نے موقع دیا. جی, اب حساب برابر ہو گیا تو اب بیچ میں نہ بولیے گا. یہ اخلاق والی میں بات بالکل نہیں. پہلے میں جواب دے دوں, اگلی بات بعد میں کروں گا. اب چپ کر کے نہ سنیے گا مہربانی. وہ آپ کے اخلاق روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ 31 ہے. مرزا صاحب کا اخلاق ملاحظہ کیجئے. اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں. دوسرا حوالہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 53 ہے. ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 235. اور تو خنزیر کی طرح حملہ کرتا ہے اور گدھوں کی طرح آواز کرتا ہے, بدکار عورت کی طرح رقص کرتا ہے. اور مرزا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ گالیاں کیوں نکالتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 80 کے اوپر کہ وَإِنَّمَا نَرُدُّ سَبَّ الصَّابِينَ عَلَى وُجُوهِهِمْ جَزَاءً لِلْمُفْتَرِيَاتِ, اور صرف ہم گالی دینے والوں کی گالی ان کے منہ کی طرف واپس کرتے ہیں تا کہ اس طرح کی پاداش ہو. یہ تو آپ کے لاسٹ سوال کا جواب ہے, اخلاق حسنہ, جو آپ نے مجھے نصیحت فرمائی ہے کہ کیا یہ اخلاق مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. تو بھائی اس قسم کے اخلاق مسلمانوں کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگلی بات, آپ نے 5 اور 50 کا کوئی فرق نہیں بتایا. روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 9 کے اوپر مرزا صاحب جو مسیح موعود صاحب ہیں آپ کے, وہ فرماتے ہیں پہلے 50 حصے لکھنے کا ارادہ تھا مگر 50 سے 5 پر اکتفا کیا گیا, اور چونکہ 50 اور 5 کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے, اس لیے 5 حصوں سے ہی وہ وعدہ پورا ہو گیا. اگلی بات آپ نے کی تھی کہ انبیاء چونکہ وہ لٹریچر کو چھاپنے کے لیے پیسے لیتے تھے, یا پھر آپ نے مثال دی کہ پہلے زمانوں میں جو ہوتا تھا جہاد کے لیے چندہ اکٹھا کرتے تھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کہاں پر جہاد اور کہاں پر کتابیں اشاعت کرنے کے نام کے اوپر 50 جلدیں کے نام کے اوپر پیسے اکٹھے کیے گئے اور وہ بھی وعدہ پورا نہ کیا گیا. جہاد کے لیے اگر انبیاء چندہ لیتے تھے تو وہ جہاد کرتے تھے, وہ خون دیتے تھے, کٹتے تھے, سر کٹتے تھے. ٹھیک ہے, ان کا لشکر ڈٹ کے کفر کا مقابلہ کرتا تھا. لیکن مرزا صاحب تو جہاد کو حرام کر رہے ہیں,
जिस नाम के ऊपर पैसे लेने थे, चंदे लेने थे, उसको तो वो कहते जिहाद हराम है। वो तो काम मिर्जा साहब ने हराम करार दे दिया, जो अंबिया का वतीरा था। और जो अंबिया का वतीरा नहीं था किताबें छापना, तो अंबिया का वतीरा ही नहीं था। लेकिन मिर्जा साहब ने वो काम किया कि किताबों के नाम के ऊपर चंदा इकट्ठा किया। लेकिन आखिर में बल्कि हुआ ये था कि पहले बराहीन अहमदिया के 4 हिस्से लिखे थे, छोटे छोटे रिसाले, आप खुद मुलाहजा कर सकते हैं। और एक एक सफ़े के ऊपर बड़े बड़े अल्फाज, बड़े बड़े हरूफ लिख के, वो बमुश्किल समझ लें कि 2-3 सफ़ों का एक पंफलेट था, एक समझ लें कि इश्तिहार था, जिसको उन्होंने एक किताबी सूरत में छापा। और उस पहले हिस्से के अंदर भी सिर्फ वो वादे ही थे कि मैं ये करूंगा, मैं ये आगे जाके ये करूंगा। तमहीदी तौर पे था वो। तो मिर्जा साहब ने वो लिखा। फिर लोगों ने इश्तियाल दिलाया कि भाई आपने 50 जिल्दों का वादा किया है, अगली भी कब आएगी? तो बमुश्किल दूसरा हिस्सा आया, वो भी छोटा सा रिसाला। फिर तीसरा हिस्सा आया, फिर चौथा आया। फिर जनाब 24 साल तकरीबन मिर्जा साहब को पता नहीं कौन से काम में मसरूफ हो गए थे, तो वो जिसके पैसे इकट्ठे किए थे वो भूल गए। और 25 साल के बाद बराहीन अहमदिया का 5वां हिस्सा लिखा। और उसके बाद मिर्जा साहब की ये तहरीर है, जो कि जिल्द 21 के अंदर है, कि पहले मैंने 50 लिखने का कहा था, तो अब चूंकि 5 ही लिखी है, तो 50 और 5 में सिफर का ही फर्क है, तो वो जनाब अब वादा पूरा हो गया। आप मुझे बताइएगा, आप समझदार, बड़े यकीन जाने मुझे आपसे बात करके लुत्फ आ रहा है। आपने अपना नाम मुबारक अहमद साहब बताया है। मुबारक साहब, आप समझदार हैं मेरे भाई, बड़े समझदार हैं। आप इंसाफ से बताइएगा, क्या मिर्जा साहब, आप थोड़ी देर के लिए मिर्जा साहब को अपना मसीह मौद ना माने, एक एज ए इंसानियत, सिर्फ इंसानियत के तकाजों के तहत आप बताइएगा, क्या ये इंसानी वतीरा है? एक शरीफ इंसान का ये वतीरा है कि वो इस तरह का धोखा दे कौम को, कि भाई देखो जी मैं तो 50 जिल्दें लिखूंगा, तो 50 के छोटे छोटे 5 रसाले लिख के, और बाद में कहे जी वो 50 और 5 में सिफर के फर्क है। भाई मैं आपसे उधार लेता हूँ 50 रुपये, और 5 रुपए का एक सिक्का मैं आपको दे के कहता हूँ कि देखो जी वो मैंने 50 तुमसे लिए थे, तो वो चूंकि 5 और 50 में सिफर का ही फर्क है, तो वो लिहाजा वो 50 रुपये पूरे हो गए। तो आप मुझे बताएं, आप वो 50 रुपए की जगह 5 का सिक्का लेंगे मुझसे? इंसाफ से बताइएगा जनाब, ऐसा नहीं है, ये दुनिया का तरीका कार ही नहीं है। अब आप बोल सकते हैं जनाब। हाँ जी मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इजाजत दी गुफ्तगू करने की। बात दरअसल ये है, मैं आपसे इब्तदा से एक ही बात मैंने पूछी थी, लेकिन आपने मुझे उस बात का जवाब नहीं दिया कि आपका मकसद जमात अहमदिया की मुखालफत करना है, या फिर आपका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ अहमदियों के ऑडियोज को काट छांट करके वीडियो पे अपलोड करके अपने व्यूज बढ़ाना, और साथ में नंबर देना है कि वीडियो नंबर 153 हो गई, 154 हो गई, 155 हो गई, या फिर आपका मकसद इस्लाह करना है? आपने मुझे उस बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि अगर आपका मकसद इस्लाह करना होता तो आप मुझे बता देते कि हाँ जी मेरा मकसद जो है वो इस्लाह करना है, क्योंकि आप लोग हमारी नज़र में, यानी कि अहमदी मुसलमान हैं, आपकी नज़र में जो है वो भटके हुए हैं, वो राह रास्त पर नहीं है। लिहाजा जी मेरा मकसद जो है ना वो आपको राह रास्त पे लेकर आना है। तो आप जो है ना वो इस ये तरीका है, और मैंने आपको उसका तरीका भी बताया कि जो असूली इख्तलाफात हैं उन पे बात करें, लेकिन आपने उससे बात नहीं की। मैंने आपको उस बात का जवाब भी दिया कि नबी जो हैं और जो खुलफा जो होते हैं, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से जो जो वक्त की ज़रूरत है, जो जो वक्त की जो है वो मुतालबा है, उस वक्त के हिसाब से अपनी कौम से कुर्बानियाँ मांगते हैं। उसमें माली कुर्बानी शामिल है, उसमें जानी कुर्बानी भी शामिल है, उसमें इज्जत की भी है, उसमें वक्त की भी है। अब आज का जो दौर है उसमें इल्मी जहाद जो है वही अहमियत रखता है। आपने कहा कि जी उन्होंने जहाद को मनसूख कर दिया। मिर्जा साहिब अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर यह फरमाया है कि जो आज का जो दौर है, इस दौर के मुताबिक जो आज के हालात हैं, इस हालात के मुताबिक वो जहाद हो ही नहीं सका। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि जो उसके शराइत हैं वो आपके सामने है हदीस के अंदर। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप मुझसे कहेंगे डिटेल बताओ, हदीस का हवाला नंबर बताओ, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हदीस का हवाला नंबर तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे पढ़ी हुई है मैंने। आपको आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हवाले वो मांगते हैं हवालों, क्योंकि ना तो मेरा आपका कोई मुनाजरा तय हुआ है, ये मेरी और आपकी एक आम गुफ्तगू हो रही है जो कि मैंने आपको अखलाकी तौर पर मिलाई है। मैं पूछना चाह रहा था कि आपका मकसद क्या है। तो हवाला जा तो आप मुझसे तब मुतालबा करने का हक रखते हैं, या तब मेरा मेरा फर्ज बनता है आपको देना, कि जब मैं और आप किसी मुनाजरे के अंदर अवाम नास के सामने वाज़ेह तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं ऑनलाइन या किसी व्हाट्सएप के ग्रुप में। ये मैं और आप प्राइवेट में चैट गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारे लिए की है सबूत है कि जी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की। अगर मुफ्ती साहब मुझ पर कोई इल्जाम लगाते हैं, या मुफ्ती साहब कहेंगे कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, अगर मुबारक मुझ पर कोई इल्जाम लगाता है तो इसलिए रिकॉर्डिंग चल रही है, वरना और इसका कोई मकसद नहीं। यूट्यूब पे आपका अपलोड करना फेल है, आपने अपनी व्यूज बढ़ाने हैं, आप बढ़ाएं, 100 बार बढ़ाएं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो जिहाद की बात है वो आज के हालात के हिसाब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक जो लड़ाई के असूल, जो जिहाद के, इस्लाम की खातिर जिहाद के असूल हैं, वो आज के हालात के मुताबिक हमें वो वक्त इजाजत नहीं देता है। तो इसलिए मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दौर कलमी जिहाद का है, ना कि सैफ जहाद का, जहाद भी सैफ का। तो आपको उस बात पे एतराज है तो ठीक है, आप अहदीस पे एतराज कर रहे हैं, वो आपका अपना जाती फेल है, उस पर मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, और ना उस पर जमात हिंद कुछ कहेगी। वो शुरू से बुजुर्गान जो है वो कभी आपके अलग अलग मकाती के फिगर के बुजुर्गान जो है वो एतराज करते हैं, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाह करना है, आपका मकसद मुखालफत करना वो एक अलग चीज है। अच्छा जी, जहां तक आप बात कर रहे हैं जी किताब के जो है वो 50 और 5 की बात, तो मोहतरम बात यह है कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो अपनी 5 किताबों में बात बयान फरमाई है ना, बराहीन अहमदिया की 5 जिल्दों में, मेरी जो सोच है, जो मैंने पढ़ा है, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी ने कोई दावा किया नहीं किया, किसी ने इसके ऊपर क्या बात की, किसी ने इसके ऊपर क्या जवाब दिया, आपको हो सकता है किसी से कोई और बात हुई है, उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से, हर इंसान की अपनी सोच है। मैंने जिस हद तक रूहानी खजाइन की ये बराहीन अहमदिया हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जो पढ़ी है, उन 5 जिल्दों के अंदर हजूर ने 50 क्या 500 जिल्दों का काम करके दिखा दिया माशाल्लाह से। मैं तो इतनी बात जानता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने सिर्फ 50 जिल्दों का कहा था, माशाल्लाह से 87 से 88 के करीब उनकी तसानीफ मौजूद है। नाम अलग अलग हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मकसद तो एक ही है, इस्लाह खल्कुल्लाह, इस्लाम की बालादस्ती, इस्लाम का बोलबाला। तो मेरी नजर में तो ये 50 का एतराज बनता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर वो मुकम्मल किताबें लिख दी हैं। इतनी किताबें हिंदुओं के खिलाफ, आर्य समाज वालों के खिलाफ, आपका वो जो उनका सनातन धर्म है उसके खिलाफ, फिर ईसाइयों के खिलाफ, फिर आपका जो हमारे जो सिख बरादरी है उनको इस्लाह के लिए दावत दी कि देखो तुम्हारे बाबा गुरु नानक मुसलमान थे, तुम उनके पीछे चलो, हिंदुओं के पीछे ना चलो। फिर जो हमारे मुसलमान भाई जो हमारे मुख्तलिफ कामों में लग गए हैं, मुख्तलिफ बिदात में पड़ गए हैं, कोई मिलाद मना रहा है, कोई 40वां मना रहा है, कोई तीजा मना रहा है, कोई मुहर्रम के अंदर कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मकसद ये सब चीजें इनकी इस्लाह के लिए मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तसानीफ लिखी। तो वो 5 से 50 क्या 50 से भी कई गुना ज्यादा उसका जो है वो हजम हो गया। अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट मुफ्ती साहब, अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ जिल्दें लेने का है कि जी 50 जिल्दें होनी चाहिए, तो मुफ्ती साहब 2-2 सफ़े एक एक जिल्द के अंदर करके 100 सफ़ों की आपके हाथ में 50 जिल्द अगर थमा दी जाती तो क्या वो आपकी नज़र में काबिल कबूल था? या फिर एक ही जिल्द में 50 जिल्दों का काम करके दिखा दिया जाए कि लो जी ये काम मुकम्मल हो गया है और ये इसका जो फर्ज है वो निभा दिया गया हुआ है, जो मकसद था इसका वो पूरा हो गया हुआ है। तो उन्होंने 5 जिल्दों में, बकौल आपके 5 जिल्दें जो उनसे लिखी हैं बराहीन अहमदिया की, उसके वो मेरे हिसाब से तो उसमें भी उन्होंने काम मुकम्मल कर दिया। और फिर उससे बढ़कर 5 के बजाय 87 किताबें लिखी हैं, 87 तसानीफ है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की। बराहीन अहमदिया के 5 हिस्से एक तसनीफ है, इसके अलावा 86 तसानीफ और है कमोबेश। तो मोहतरम इसमें तो मेरा ख्याल है एतराज आपका वहीं पे खत्म हो जाता है, अगर मकसद पूरा हो जाए। मेन चीज तो मकसद पूरा होना है ना, इसके अलावा तो और कोई बात नहीं है। अगर ये हो कि जनाब मकसद पूरा नहीं हुआ, अच्छा अब आ जाते हैं वापसी, जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि मोहतरम मुफ्ती साहब, अगर आपका मकसद हमारी इस्लाह करना है
تو آپ کو اصولی طور پر تو یہی چاہیے نا کہ آپ ہم سے بات کریں جی نبوت جاری ہے یا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہے یا نہیں ہے، اس طرف آپ کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ آپ کا مقصد صرف اور صرف نبی کی استہزاء یا نبی کی ہی ذاتی زندگی، نبی کے ہی چندہ جات، نبی کی ہی تحریکات جو کہ مستشرقین آج تک کرتے آ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آج تک کرتے آ رہے ہیں، وہی کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا مقصد اصلاح ہونا چاہیے، تو آپ ان معاملات کے اوپر اصلاح کریں نا جس پہ قرآن کریم کہتا ہے عیسائیوں کو کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ محترم مفتی صاحب، آئیں اس بات کی طرف جو ہم میں اور آپ میں مین جو مشترک ہے کہ اللہ ایک اور اس کی بات کرو، جہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے کہ نبی آنا ہے یا نہیں آنا ہے، اور نبی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، یا فوت ہو گئے ہیں، یا قرآن کریم ان کے آنے کا انکار کرتا ہے یا ان کے آنے کا اثبات کرتا ہے، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ آئیں گے۔ یہ بھی تو باتیں آپ کو دیکھنی پڑے گی نا۔ یہ آپ کا محور صرف اور صرف مرزا صاحب علیہ السلام کی ذات ہے۔ دیکھیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ہر بار دیکھیں، میں نے آپ نے پچھلی بار بھی سوال کیا، میں نے اس پہ جواب دیا کہ آپ کا اعتراض غلط ہے، چندہ جات کی غلط بات ہے۔ ہر نبی نے اپنے دور کے اندر جو جو قربانی ان کو اپنی قوم سے چاہیے تھی، مالی تحریک یا جسمانی تحریک، مالی جانی تحریک، یا پھر جو بھی ان کو ضرورت تھی قربانی کی، انہوں نے لی اپنی قوم سے، اور وہ کی اس کی قوم نے۔ اور آج ہم ان کی قوم ہونے کے ناطے ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر کہ ہم نے اپنے وقت کی، اپنی عزت کی، اپنے مال کی قربانی کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو تو اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ بھئی ہم کون سا آپ کی جیب سے چندہ مانگ رہے ہیں؟ یہ جماعت احمدیہ کون سا آپ کی جیب سے چندہ مانگ رہی ہے؟ جن کی جیب سے چندہ مانگ رہی ہے وہ احمدی ہیں، وہ دے رہے ہیں۔ جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ نکل جاتے ہیں، وہ آپ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کبھی وہ عرفان محمود برق بن جاتے ہیں، کبھی وہ شمس الدین بن جاتے ہیں، کبھی وہ کچھ بن جاتے ہیں، کبھی وہ طارق چوہان بن جاتے ہیں، کبھی وہ کچھ بن جاتے ہیں۔ تو اعتراض تو آپ کو ہونا نہیں چاہیے نا، وہ تو آپ کی طرف آ رہے ہیں جنہوں نے چندہ نہیں دینا۔ جنہوں نے چندہ دینا ہے وہ ادھر ہی رہ رہے ہیں۔ اعتراض آپ کا اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ چندہ جماعت احمدیہ کیوں لے رہی ہے، آپ کا اعتراض تو اس بات پہ ہونا چاہیے اصولی طور پر کہ جماعت احمدیہ کی بنیاد کس بات پر ہے۔ آپ تو دیکھیں خلیفہ رابع جو ہماری جماعت کے خلیفہ ہیں، چوتھے خلیفہ، انہوں نے فرمایا تھا، میں ان کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ ایک مسیح کو آسمان سے اتار دیں، ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ثابت کر دیں کہ مسیح آسمان پہ گیا تھا اور وہی آسمان سے نیچے آئے گا، ٹھیک ہے، تو پھر جماعت احمدیہ کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر مرزا صاحب کا کاہے کا دعویٰ مسیح موت کا، پھر مرزا صاحب کا کاہے کا دعویٰ نبوت کا؟ کیونکہ آنے والے کو، مسیح کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی اللہ فرمایا، اور فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ وحی کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ تو وہی مسیح نبی اللہ ہونے کا ہے جس کو اللہ نے وحی کرنی ہے۔ اب جب وہ مسیح نبی اللہ آسمان سے اتر کے نیچے آ جائے گا مفتی صاحب، جس کو آپ آسمان پر مانتے ہیں، تو پھر مرزا صاحب کا تو وہ دعویٰ ختم ہو گیا نا۔ پہلے آپ اس کو آسمان سے اترنا ثابت کریں، بعد میں مرزا صاحب کی ذات کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس میں آپ کی کوئی حد تک نہیں ہے، نہ اس میں کوئی آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے کہ اصول پر بات کی جائے۔ بے اصولی بات کرنے پہ فخر محسوس کرنا اور اس کے اوپر ضد کرنا اور اسی کے اوپر رہنا، آپ مسلسل جتنی لمبی میری آپ سے بات ہوئی اب وہی بے اصولی بات کر رہے ہیں۔ اصول کی بات کریں تاکہ اگر آپ کی اصلاح ہونی ہو، آپ کی اصلاح ہو، اگر میری اصلاح ہونی ہو، میری اصلاح ہو، ہماری آخرت سنورے ہم دونوں کی، جس کی سنورنی ہو، نہ کہ یہ کہ میں آپ پہ بار بار طنز ماروں، آپ میرے مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف فالتو باتیں کرتے رہیں۔ تو میرا تو خون کھولتا ہے، لیکن میں برداشت کر کے آپ کو راہ راست پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ اصولی طریقے پہ آئیے تاکہ اصولی طریقے پہ ہم بات کریں۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا ہوگا، میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، اب آپ کو نہیں پتا کہ میرے لیے آپ کی نظر میں میری کون سا طریقہ ہوگا جس سے آپ کو میری بات کا یقین آئے۔ اس وقت میرا اپنا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے، میں بستر پہ لیٹا ہوں، میری ٹانگ میں فریکچر ہوا ہوا ہے، میرے گھٹنے پہ ٹانکے آئے ہوئے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ غلط طریقے سے لوگوں کو گفتگو کر کے ان کی ویڈیوز کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ عبدالرزاق صاحب اس وقت میری تیمارداری کے لیے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہیں سے وہ ڈیوٹی پہ جانے لگے تھے، یونیفارم پہن کے آئے تھے میرے گھر، ٹھیک ہے، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کال کریں، ٹپ ٹپ نہ کر، بک بک نہ کر، یہ آپ کے جو آپ نے اسٹیکر بھیجا تھا، اس وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا یار مفتی صاحب کو ہو کیا گیا، ماشاءاللہ سمجھدار انسان ہیں، اصلاح کرنے کے بجائے ضد کے اندر آئے ہوئے ہیں، لوگوں کی کالز کو اپلوڈ کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، ایسی کال جو ان کی مجبوری کی ہے کہ نہیں یار انہیں ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ مفتی صاحب کی گردن پہ کوئی چھری کر کے رکھ کے اگر گئے کہ نہیں جی بات کرو، اور پیچھے سے چھری رکھنے والا گئے کہ تو گل کی تھی میں گلا واڑ داں گا، میری سمجھ تو باہر مفتی صاحب گل کریں گے کہ نہیں کریں گے، مینوں نہیں سمجھ آ رہی۔
ਬਹਰਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਤ ਹੋਣਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ बिस्मिल्लाह पढ़ के, जी। शुरू करो बिस्मिल्लाह पढ़ के। अच्छा, जी ये है कि आपने जो बातें की हैं इसमें मैंने पॉइंट नोट किए हैं, तकरीबन 11 पॉइंट बनते हैं, तो मैं फर्दन फर्दन हर एक पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डालता हूँ। गुजारिश ये, पहली बात आपने ये की कि आपका मकसद इस्लाह करना है कि नहीं। जी, अभी तक जितनी गुफ्तगू हुई तकरीबन 35 मिनट की गुफ्तगू हो गई है। इससे सुनने देखने वाले खुद ही फैसला कर लेंगे कि हमारा मकसद इस्लाह करना है कि नहीं। ठीक है, अगली बात नंबर 2, आपने फरमाया कि आज का दौर चूंकि कलमी जिहाद का था, इल्मी जिहाद का था, तो इसलिए मिर्जा साहब ने इस जिहाद को पसंद फरमाया। वैसे तो आप लोग मिर्जा साहब को मसीह मऊद मानते हैं और बहुत जोर लगाते हैं कि देखो जी कुरान से फलां आयत है, उससे साबित है कि मसीह मऊद, मिर्जा साहब मसीह मऊद है, और फलां हदीस है तो उसके अंदर ये साबित है जी मिर्जा साहब मसीह मऊद है। मैं सिर्फ एक हदीस आपसे तलब करूंगा या एक कुरान की आयत कि जिसके अंदर हो कि आने वाला जो मसीह होगा यानी मसीह इब्ने मरियम, वो कलमी जिहाद करेंगे, इल्मी जिहाद करेंगे, वो जिहाद भी सैफ नहीं करेंगे बल्कि वो जिहाद भी सैफ को हराम करार दे देंगे। सिर्फ एक कुरान की आयत और एक हदीस काफी होगी। नंबर 3, आपने फरमाया कि आप जी हदीसों को बेहतर जानते हैं, मेरे पास अभी हदीसों के कोई हवाले नहीं है। बात तब करें आप जब आपके पास हदीस का हवाला हो। जितने भी अहमदी कादियानी जिनको हम कहते हैं या मर्दई कहते हैं, वो आज तक इसी तरीके की बातें करते हैं कि देखो जी तुम्हें पता है, तुम मुफ्ती हो, तुम बेहतर जानते हो। ऐसे ना किया करें, ये मेरी आपको इस्लाह है कि भाई कम से कम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। ये मेरी आपको इस्लाह है। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को तो चलो कम से कम आप भी मानते हैं ना, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। बिल्कुल। और फरमाया कि जज़ाकल्लाह। किसी इंसान जो शख्स मेरी तरफ झूठ की निस्बत करता है उसको चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। तो ये हदीसें कम से कम इनसे आप फायदा उठाइए। अच्छा, आगे आपने फरमाया जी, ये चौथा पॉइंट है कि जो 50 जिल्दों में जो काम होना था वो 5 जिल्दों में ऐसा कर दिया कि वो 500 के बराबर है। मैं आपको कहूंगा कि मिर्जा साहब ने जब ये ऐलान किया था तो उस वक्त ये बात क्यों ना की कि मैं 50 लिखूंगा और उसके अंदर 5 लिखूंगा लेकिन उसके अंदर काम 50 जैसा होगा। ये उस टाइम क्यों नहीं की, जब पैसे लेने की बारी आई तो उस टाइम तो उन्होंने ये बातें नहीं की। और आज जनाब आप लोग 125 साल 150 साल के बाद ये बातें आपको याद आ रही हैं। मिर्जा साहब ने पैसे लेते वक्त ये लोगों को क्यों ना कहा। मैंने जब आपसे 50 रुपये लिए थे तो उस वक्त मुझे कहना चाहिए था कि मैं आपको 5 रुपए का सिक्का वापस करूंगा, तो वो 5 का सिक्का 50 के बराबर होगा। ये एक सवाल है। आगे जनाब आपने 5वां पॉइंट है, सब गैर मुस्लिमों के खिलाफ कुतुब लिखी और उनको उनकी इस्लाह की। यार ये आपको अभी मैंने हवाला जात दिए, ये इस्लाह का कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है कि ये तो वलदुल हराम बनने का इसको शौक है, ये हलाल ज़्यादा नहीं है, ये खंजीर है और इनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं, खंजीर है, गधे हैं। ये इस्लाह का कौन सा तरीका है? और जनाब मुफ्ती साहब एक मिनट, प्लीज होल्ड करेंगे, मैं जरा माइक म्यूट कर जी रहा हूँ। जी 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 कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। बहुत मेहरबानी।
بہت مہربانی. جی مفتی صاحب آپ بیان فرمائیں. جی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب غیر مسلموں کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ اب مرزا صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں 86 کتابیں آپ بتا رہے ہیں، ایک کتاب بتا دیں، صرف ایک کتاب کے اوپر آپ میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، مکالمہ کر سکتے ہیں، ہم پوری کتاب کے اوپر مکالمہ کریں گے اول سے لے کے آخر تک، ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنے دعوے کو اس میں سچا ثابت کر دیجئے گا کہ بھائی دیکھو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ عیسائیوں کے خلاف ہے یا ہندوؤں کے خلاف ہے یا مطلب یہ فلاں کے خلاف ہے، تو یہ کتاب اس کے مطابق پوری اتر رہی ہے. جبکہ وہ جب ہندوؤں کو سمجھانے کی بات آتی ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ پرمیشر ناف سے 10 انگلی نیچے ہے، اور آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ سمجھنے والے کے لیے سمجھنے والے سمجھ لیں. یہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 114 کا حوالہ ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ پرمیشر تو ہندوؤں کا خدا ہے، ہندو اپنا خدا سمجھتے ہیں، اور واضح طور پہ ہمیں حکم ہے کہ غیر مسلموں کے خدا کو گالی مت دو، نہیں تو وہ تمہارے سچے کو آگے سے برا بلا کہیں گے. یہ طریقہ تھا، یہ اصلاح تھی کہ وہ گندی گندی گالیاں دینا، ان کو ناف سے 10 انگلی، سمجھنے والا سمجھ سکتا، آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ناف سے 10 انگلی نیچے ذکر ہے، ٹھیک ہے. شرمگاہ ہے. مختصر کریں اس جملے کو، کیونکہ میں اصل میں گھر میں بھی بیٹھا ہوں نا، یہ جملہ آپ بار بار نہ دہرائیں، میں سمجھ چکا ہوں آپ کی بات. اب آگے بیان کریں. آپ دیکھ لیجئے کہ آپ جی فیملی جی. کے اندر اس کو سننا نہیں برداشت نہیں کر نہیں نہیں رہے، نہیں، وہ بات نہیں ہے، بات یہ نہیں اور ہے، فیملی جنہوں کی نے بات نہیں ہے. اشاعت بات یہ کی کہ آپ ہے بار بار 4 دہرا رہے ہیں سال، نا. آپ دیکھیں ایک انسان اگر آپ ابھی سلیس انداز میں آپ پڑھتا چپ ہوا کر چیز دیں، سے مجھے گزرتا ہے بولنے نا. دیں، آپ بعد میں نہیں نہیں، بولیے. دیکھیں جب آپ گھر میں بیٹھے ہو نا، جب ماحول اس طرح کو، تو پھر بعض ٹائم انتباہ درمیان میں بھی کروانا پڑتا ہے، چلیں ٹھیک ہے، تنبیہ درمیان میں بھی کرنی چلیں پڑتی ہے. ٹھیک یہ ہے، مجھے محبتانہ بولنے دیں، تنبیہ ہے آپ کے اب مجھے ساتھ. بولنے دیں، مجھے اب بولنے دیں. چلیں بولیں، اب آپ بولیں. میں صرف آپ کو یہ کہوں گا اور سکپ کروں گا کہ جس بات کو آپ آن لائن نہیں نا، یا یہی تو چپ میں آپ کر سے دیں، کہہ رہا ایک ہوں، منٹ آپ اس بات میں کو اب غلط بول رہا رنگ ہوں، دے رہے ہیں. ایک منٹ چپ تو کر دیں. غلط رنگ دے رہے ہیں نا آپ، میری بات کو ٹھیک غلط ہو رنگ گیا، دے رہے میں ہیں. میں نہیں آپ کو یہی یہ تو لفظ بتانا چاہ نہیں رہا ہوں. دہراتا میں نہیں نہیں، آپ لفظ نہ بھی دہرائیں نا، آپ میرا آپ کو روکنے کے اب مقصد کو آپ غلط مقصد کیا قرار دینا چلیں چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، آگے بڑھتے میری بات، آگے ایک چھوٹا سا جملہ سن لیں، بس ایک چھوٹا سا جملہ. آگے بڑھتے ہیں. چھٹا پوائنٹ ہے، چھٹا نہیں پوائنٹ نہیں ہے. نہیں، اس بات کو ایک کلیئر منٹ کرنا چپ زیادہ کر کے، ضروری یہ ہے. انصاف صاحب نہیں ہے. نہیں، دیکھیں آپ نے صاحب مجھے روکا ہے، میں اس میں نہیں، رک انصاف گیا کی ہوں. بات ہے یہ. میں آپ کے ساتھ انصاف کر رہا ہوں، میں آپ انصاف کر دیکھیں کے میں آپ کو آپ بتا کی رہا ہوں گفتگو کہ میں بولا نہیں ہوں، آپ ایسا نہ کریں. اچھا چلیں آپ بات کریں. چلیں کوئی بات نہیں، آپ بات کریں. آپ بڑے، میں آپ کی بات کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے یہ درخواست کروں گا، آپ خاموش ہو بات جائیں، کریں. آپ ٹھیک ہے جی، مہربانی کریں، خاموش ہو جائیں. بہت شکریہ. میں نے، جی جی، بڑی مہربانی. آپ نے روکا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، ویڈیو بنے نہیں گی. نہیں، میں خاموش ہو گیا مفتی صاحب، آپ بات کریں. جی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ویڈیو جب بنے گی اس کے اندر اثر حوالہ جاتا ہم دکھا دیں گے. چھٹا پوائنٹ ہے بڑی مہربانی. آپ فرما رہے تھے کہ مرزا صاحب نے وہ میلاد کے رد کے اوپر، 40ویں کے رد کے اوپر، محرم کے رد کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. تو یہی تو ہم بات کہہ رہے ہیں نا کہ جو اسلامی معاملات تھے ان کے رد کے اندر ہی تو مرزا صاحب نے کتابیں لکھی، اور آج کے دور کے اندر مرزا جونیئر جیل میں ہیں، وہی مرزا صاحب کی تقلید کرتے ہوئے اور پیروی کرتے ہوئے اور اس کے اوپر وہ ویڈیو اپنے چینل کے اوپر لانچ کر رہے ہیں. تو اسلام کے خلاف کام کیا نا انہوں نے سارا. تو رد تو اسلام کا کیا انہوں نے، نہ کہ غیر مسلموں کا رد کیا. آگے آپ فرما رہے ہیں کہ جناب آپ اس موضوع پر ہی کیوں بات کرتے ہیں مرزا صاحب کی ذات کے اوپر. تو ہم جو اصولی اختلاف ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی اور نزول آسمانی کا، تو اس کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے. تو آپ نے یہ بلا 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 کہا ہے. گزارش یہ ہے کہ بلا نہیں، میری پوری بھائی بات دہرا ایک دیں. منٹ رک جائیں، آپ بول لیجئے اپنے وقت پر. آپ میرے پوائنٹ ہے 11، ایسے نہ اچھا کریں. چلیں، صحیح پھر ہے. میں آپ ٹھیک کو، ہے ٹھیک پھر ہے میں مفتی بھی، صاحب، مجھے ٹھیک ہو بھی گیا. اجازت نہیں دیجیے نہیں کہ میں نہیں آپ کی باتوں کو ٹوکوں. آپ کا نہیں نہیں پیغام نہیں، مفتی صاحب نہ معذرت پہنچ خواہ. نہیں پائے، نہیں نہیں، کوئی میں بات بار نہیں. بار آپ آپ بڑے کو مفتی ٹوکتا صاحب، ہوں. آپ بڑے. وہ مجھے بلا بلا نا تھوڑا سا عجیب لگا تھا. آپ بات کریں مفتی صاحب، بات کریں. پھر میں بات بھی کریں. ٹوکوں گا. دیکھیں یہ اصول بنا دیا نا آپ نہیں نے، نہیں نہیں، آپ نے خود سمجھ گیا اصول میں آپ بنا کی بات. دیا، میں بیچ میں آپ کی باتوں کو بھی ٹوکوں گا. میں یہ اصول بن گیا، کوئی بات نہیں، آپ بڑے ہیں، آپ مجھے ڈانٹ سکتے ہیں. یہ آپ اصول کوئی بات بن نہیں، آپ گیا بڑے نا ہیں کہ مفتی. آپ کا پیغام بھی قوم تک میں نہیں پہنچنے دوں گا، بیچ میں ٹوکوں گا.
ٹھیک ہو گیا؟ نہیں میں آپ کا پیغام نہ پہنچنے کے لیے نہیں کہہ رہا آپ نے ہوں، یہ میں نے عرض کی ہے جو آپ نے میرے لفظ کو بلا 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 کہا ہے نا، وہ بلا بلا نہیں تھا، وہ بات تھی جو کہ میں نے کہی تھی، میری بات پوری دہرا دیں، یہ عرض کی ہے میں نے۔ مرزا صاحب کی ذات کے اوپر یہ آپ لوگ کیوں بولتے ہیں؟ اصل میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا اور پیغام الہی لوگوں کو سنانا چاہا تو سب سے پہلے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ لوگوں میرے اندر، میری ذات کے اندر تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے بتاؤ؟ لوگوں نے کہا آپ تو صادق اور امین ہیں۔ سب سے پہلے نبی اپنی ذات کو منواتا ہے، اپنی شخصیت کو منواتا ہے، پیغام الہی تو بعد میں دیتا ہے۔ اور بڑے اتفاق کی بات ہے کہ آپ لوگ مرزا صاحب کی ذات کو چھپاتے ہیں لیکن ان کے دعوی جات کو پہلے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ کم از کم آپ مرزا صاحب کی ذات کے اوپر پہلے بات کیا کریں، ان کی شخصیت کیسی تھی، وہ کیسے پیدا ہوئے تھے اور ان کے پیدا ہونے کا انداز کیا تھا، وہ پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کا بچپن کیسا تھا، پھر وہ شباب کیسا تھا، ان کی جوانی کیسی تھی، ان کے معاملات کیسے تھے، تو اس چیز کے اوپر آپ بات کیا کریں، اس کے اوپر آپ لوگ بات کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ میری آپ کو ہدایت ہے، عمل تو آپ لوگوں نے کرنا ہے یا نہیں وہ آپ کی اپنی خوشی ہے۔ اچھا جی آگے اللہ تعالیٰ ایک پوائنٹ ہے، آپ نے فرمایا جی آئیں اس پر بات کریں نا کہ اللہ عز و جل ایک ہے اور وہ واحد ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ دعوت قبول کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ مکالمہ سیٹ کر لیں، ہم توحید کے موضوع پر ہی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وقت طے کر لیجئے گا، اب آپ نے چونکہ دعوت دی ہے، مجھے امید ہے آپ میری یہ دعوت قبول کریں گے اور ہم توحید کے اوپر ہی بات کریں گے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ قادیانیوں کی توحید کون سی ہے اور مسلمانوں کی توحید کون سی ہے۔ آگے آپ نے بات کی ہے چندے کی، ٹھیک ہے؟ چندہ جی، چندہ ہم اپنی جیب سے دیتے ہیں تو کسی کو کیا لینا اور دینا۔ مجھے یاد آ گیا ہے یہ الفضل اخبار کا ایک تراشا، یہ 28 فروری 1930 کا یہ اخبار ہے۔ فرماتے ہیں جناب آپ کے خلیفہ صاحب کہ ہاں اگر کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتا تو اسے جماعت میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، یعنی یہ جو جماعت، دوبارہ بات دہرائیے گا، مجھے آپ کی بات سمجھ رک نہیں جائیں، آئی۔ اب میرے بھائی بولے نہیں بیچ میں، میں نے ابھی پوائنٹ، نہیں میں کہہ رہا ہوں مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ دہرا دیں۔ میں نے اپنے پوائنٹ پورے کرنے ہیں، میں نے اپنے پوائنٹ جو مفتی صاحب جملہ دہرانے کی درخواست کر رہا ہوں، جملہ آپ دہرانے بیچ کی میں نہ درخواست۔ بولیں، آپ یہ دیکھیں نا، آپ نے سارے مفتی صاحب کو میں لگ رہا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی گل میری، میں سادی اردو چ گل کر رہا ہوں کہ کو تسی بڑا دہرا اچھا دو۔ انسان سمجھ رہا تھا، سب میرے آپ نے حسن زن کے اوپر پانی پھیر دی ہے۔ اے ہے مفتی جی بڑے جذباتی ہو گئے، میں کہہ رہا ہوں پہلے کسی بتا دیا الفاظ دہرا دو۔ طریقہ کار ہے، یہی طریقہ واردات ہے، چلیں جی مفتی صاحب آپ بات کریں، آپ واردات کو بات نہیں کریں، نا آپ بدل بات کریں۔ سکتا، نہیں آپ بات کریں، آپ بات کریں، طریقہ بات کار کریں۔ نہیں بدل سکتا نا مبارک احمد صاحب۔ طریقہ واردات ہی یہ ہے کہ مسلمان کی بات سنو ہی نہیں، اپنی کھپ ڈال دو، اپنی کھپ ڈال دو، بس رولا پا دیو، اور تاکہ اگلے تک بھائی مسلمان کی بات جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں نا، اس کی بات سمجھنے کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں ہوں تسی لیکچر نہ دو، اپنی گل کرو، یا تو پھر تسی اپنی گل پوری کرو، یا پھر تسی میری گل سنو پھر ایک سیکنڈ واسطے، تسی اپنی گل پوری کرو، یا تو پھر میرے تے ٹونٹ نہ مارو، اپنی گل پوری کرو۔ میں تانوں کہہ رہا مینوں تہاڈی گل سمجھ نہیں سی آئی، میں تانوں یہ درخواست کیتی سی مفتی صاحب اپنی گل ریپیٹ کرو، مینوں سمجھ نہیں آئی ہے۔ ظاہر جی گل ہے تہاڈی گل سمجھاں گا تے تانوں جواب دواں گا، یا پھر تہاڈی گل اگنور کراں گا، تسی کہو گے چنگے بندے تسی میری گل سنی نہیں۔ میں تانوں اے کہہ رہا مینوں تہاڈی گل سمجھ نہیں آئی ہے، تسی گل ریپیٹ کر دو، تانوں اے درخواست کیتی ہے۔ تسی اودے تے مینوں لیکچر شروع ہو گئے مرزائیاں دا طریقہ ہے، طریقہ تسی سامنے دی گل نوں سنن دی کوشش تے کریا کرو۔ میں تے تہاڈی گل توجہ نال سن رہا، ایک جملہ تہاڈا مینوں سمجھ نہیں آیا، اودے تے میں تانوں درخواست کیتی ہے کہ جناب اے ریپیٹ کر دو کی گل کیتی ہے۔ اور تسی مینوں لیکچر شروع ہو گئے، تسی چپ کرو، وچے نہ بولو، وچے نہ بولو، تسی تے کیسٹ لے کے شروع ہو گئے مفتی صاحب، تسی مینوں طریقے دسن لگ پئے، احمدیہ دا مرزائیاں دا طریقہ، اے فلانا او ٹمکانا۔ اب آپ یار کا کوئی لیکچر ختم تھوڑی سی ہوگا انسان، تو میں آگے پوائنٹ چلاؤں گا، ابھی تو پچھلی باتیں نہیں پوری ہوئی میں تو میں آگے پوائنٹ پہ تو بعد میں جانا ہے نا مفتی جی، پہلے پچھلے پوائنٹ کو وہ دہرا تو دو جو ابھی جو کر پوائنٹ دیتا ہوں، دہرایا ہے۔ ریپیٹ کرتا ہوں، چپ کریں ہاں کہ مجھے مہربانی، یہی میں درخواست کر رہا تھا، میں ریپیٹ اس کر رہا لیکچر دینے سے پہلے وہ ریپیٹ میں کر دیتے تو بات ریپیٹ ختم ہو کرنے جاتی۔ لگا ہوں، بڑی مہربانی۔ ریپیٹ کرنے لگا ہوں ہاں ہاں جی بڑی جی۔ مہربانی۔ یہ الفضل اخبار ہے اور 28 فروری 1930 کا شمار ہے۔ فرماتے ہیں
आपके खलीफा साहब कि हाँ अगर कोई 1 रुपया भी नहीं देता चंदे का तो उसे जमात में रहने की क्या जरूरत है। अगला हवाला है, बिल्कुल ये अल फजल अखबार है 20 मार्च 1928। फरमाते हैं ऐसा शख्स आम तौर पर चंदा देने में सुस्त होता और खिदमत दीन से रुकता है, और ना सिर्फ खुद रुकता है बल्कि दूसरों को भी रोकता है। हमारी जमात में भी जहां जहां ऐसे लोग हैं वो खुद भी चंदा नहीं देते और दूसरों को भी रोकने लग जाते हैं। जहां तहरीक हुई कि फलां काम के लिए चंदा दो, कह उठते हैं भाई सख्ती ना होनी चाहिए, आजकल लोगों को मुश्किलात हैं। अनवारुल उलूम सफा 166 के ऊपर आपके खलीफा साहब लिखते हैं, देखो हजरत मसीह मऊद ने फरमाया है जो वसीयत नहीं करता वो मुनाफिक है, और वसीयत का कम अज कम चंदा 1/10 हिस्सा माल का रखा है, जिसमें आम चंदा खुद वक्तन फवक्तन करना पड़े शामिल नहीं। ये बताइएगा शरीयत इस्लामिया के अंदर ये इतनी चंदे की जो सख्ती है वो कहाँ पे है। ये तो सिर्फ ज़कात थी जिसकी सख्ती थी, तो ये अहमदियों का कोई नया इस्लाम है जो हकीकी इस्लाम आप लोग कहते हैं। इतनी सख्ती के जो 1 रुपया भी नहीं देता चंदे का तो उसको रहने का कोई हक ही नहीं है, जो वसीयत नहीं करता तो वो मुनाफिक हो गया है। हाँ जी, कमाल हो गया जनाब। ये कौन सा चंदा बटोरने का तरीका है जनाब, और ये तरीकाकार तरीका वारदात। यहाँ तो दुआएं जो की जा रही हैं वो भी जनाब चंदा दोगे तो जनाब वो आपकी दुआएं होंगी। दुआया तकरीब स्पेशल तौर पे चंदे के नाम के ऊपर होती है आप लोगों की, उसका तराशा मेरे पास मौजूद है जो कि मैं अपनी वीडियो को गलत बात ही नहीं है। अगला पॉइंट सुनिए, चुप करके सुनिए। अच्छा आपने कहा जी जिस मसीह ने आना था उसके ऊपर अल्लाह ने वही करनी थी, ठीक है, ये आपने फिर बात की है। आप वो हदीस मुझे बता सकते हैं किस हदीस के अंदर है, ये आप नोट कीजिए। बोलूं या बाद में बताऊं? हदीस मुझे आपने लाजमी अपने वक्त में बतानी है। मेरी बात तो आपने एक नहीं सुनी। बहरहाल आपका टाइम अब शुरू होता है और मैं आपके तरीके के मुताबिक बीच में बार बार टोकूंगा, ठीक है जी, बात शुरू करें। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। आप मेरे बड़े हैं, आप मुझे अभी भी कहेंगे ना कि शेख मुबारक साहब चुप हो जाओ, सिर्फ मेरी सुनो, मैं फिर भी आपकी सुनता रहूंगा, क्योंकि मेरी नजर में जो है ना सवालों को मेरी नजर में जवाब दें। मैं दे रहा हूँ जनाब, अब मैं बात भी करूँ ना, या फिर ये आपकी मर्जी तो नहीं बात करूंगा। आप टोके जरूर बीच में, तरतीब से जवाब दें। आप टोके, मैं कह रहा हूँ आप हजार बार टोके, लेकिन बात मैं अपने तरीके से करूंगा, आपके तरीके में नहीं करूंगा। मैं जवाब दूंगा लेकिन अपने तरीके से दूंगा, आपके तरीके में नहीं दूंगा। मैं आपने अपने तरीके में जवाब दिया है, मैं अपने तरीके में जवाब कलमी सवाल, लेकिन आपने दरमियान में मुझे लेक्चर भी दिया है जब मैंने आपको बीच में रोका है। मैंने आपकी बात सुनी है, आपने मुझे लेक्चर दिया, अब आप मेरी सुनेंगे। पहले मुफ्ती साहब जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी रगड़े लगा लें, लेकिन मेरी बात मैं अपने तरीके से बयान करूंगा। हवाला दे दें, बात मैं अपने तरीके से करूंगा। मैं मुफ्ती मुबशर के बोलने के तरीके से, मुफ्ती मुबशर की सोच के तरीके से बात मैं नहीं करूंगा। जो मर्जी करना है मुफ्ती साहब कर लें, किसी काल कटनी है काल कटो, चीखा मारनी चीखा मारो, लेकिन मैं गल अपने तरीके नाल करांगा। मैं तुहाडे तरीके नाल गल नहीं करूंगा। कलमी जिहाद का तरीका मेरा अपना ही होगा। और मैं गल शुरू करा, बड़ी इजाजत का फर्क भी आपने अभी तक नहीं बताया। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मुफ्ती साहब मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम के अल्फाज में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास असल में एक मोबाइल कम था, तो जिसका रिकॉर्डिंग इनसे पूछा जाए कि दलील देते जाओ तो वहीं घुस जाते हैं जहां से निकले होते हैं। मिर्जा साहब के अल्फाज मिर्जा साहब, फिर आप वहीं घुस गए, फिर आप वहीं घुस गए। फिर जी वो तो मैं आपसे अब सुनेंगे मेरी बात। वो तो गुस्से तो नहीं, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? मैं मिर्जा साहब की बात का मैं जवाब दूंगा या मुफ्ती मुबशर जवाब देगा? भाई मुफ्ती मुबशर, मिर्जा साहब को मुफ्ती मुबशर मानता है या शेख मुबारक मानता है? या तो मुफ्ती मुबशर इस बात का ऐलान करे कि मैं मिर्जा साहब को मानता हूँ, उनकी बात को मानता हूँ। 5 और 50 सुनेंगे तो दूंगा मैं। नहीं मुफ्ती साहब नहीं, मुफ्ती साहब रोना धोना छोड़ दें। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ, मुफ्ती साहब मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी बात रिपीट करवाने के लिए, मुफ्ती साहब रोना धोना छोड़ दें।
मुफ्ती साहब रोना धोना छोड़ दे। मैंने कहा ये आप बुजुर्गों के साथ ये रस्म आप नहीं डाली है, दरमियान में टोकते थे। मैं सिर्फ नहीं, मैंने आपसे इजाजत मांग के बात की है। मैं आपको सबक सिखाने मैंने के आपसे लिए, अब आपकी मैंने सिखाने अच्छा के चले लिए ये दरमियान में टोक रहा हूँ कि कोई तमीज होती है बात करने की। मैंने जब आपकी बात बड़ी तवज्जो से सुनी थी, इंसाफ का तरीका ये था, आपको मेरी बात तवज्जो से सुननी चाहिए थी, दरमियान में नहीं टोकना चाहिए था। ये सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए मैं बीच में टोक रहा हूँ, मेरी ये आदत नहीं है। अभी बार बार कितनी दफा और सबक सिखाएंगे मुझे बताएं जरा, फिर मैं आपको सबक का भी जवाब दे दूंगा। तो कितनी दफा आप सिखाएंगे? बराए करम इन सवालों के जवाब तरतीब से देने शुरू करें। नहीं, जब तक मुझे पहले मुझे जवाब दें कितनी दफा सबक सिखाएंगे, फिर मैं सवालों जब का जवाब तक दूंगा। आप पहले मैं नहीं तौबा दूंगा। नहीं कर लेंगे या वहीं में घुस नहीं जाएंगे जहां से निकले अच्छा, थे। मैं मुंह से तौबा करूं, दिल से तौबा ना करूं, फिर मुफ्ती साहब की करेंगे? अल्लाह ने मुफ्ती जवाब साहब दें, फिर जवाब दें। नहीं, पहले मुफ्ती साहब मुझे बताएं कब तक टोकेंगे, जब फिर तक मैं आप उसके तौबा बाद नहीं जवाब कर दूंगा। लेते या घुस नहीं जाते, क्योंकि मिर्जा साहब ने फरमाया हुआ है। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, जी मुफ्ती जी साहब, जी जी। ये जो है ना रोना धोना छोड़ दें। आलिम शख्सियत मिर्जा है, साहब की मैंने किताबें आपसे जो जब बात हम पूछी पढ़े ना, तो ये मुफ्ती रोना साहब धोना नहीं, होता मुफ्ती है। साहब नहीं, मुफ्ती साहब नहीं, मुफ्ती साहब ये नहीं, अब मेरी रोना बात धोना सुनी होता थोड़ी है। सी, थोड़ी सी सुन के टोक लेना। अब ये तो नहीं ना, मैंने तो आपको इस तरीके से मतलब तो नहीं ये टोका कि था। जब मैंने मिर्जा आपको साहब की मेरे किताबों की तरीके से बात टोके, करें तो ये रोना धोना मेरे होता तरीके से है। टोके, मेरे तरीके से टोके ना, जिस तरह मैंने टोका मतलब बदला तो ये वही कि है ना जो मिर्जा मेरा साहब तरीका की होगा। बातें जब हम भाई आपको कसास सुनाएं कुरान तो को ये मानते रोना हैं, धोना मुफ्ती साहब के नहीं है, मानते, ये या रोना कुरान के धोना है जी। इंकारी है? मिर्जा मुफ्ती साहब की साहब कुरान बातें के हैं इंकारी ये। है, हाँ जी, ये मुफ्ती रोना साहब धोना कुरान के इंकारी है, मुफ्ती साहब कुरान के मतलब इंकारी ये हैं। कि मिर्जा कसास जो साहब होता ने है ना अपनी वो किताबों के मुफ्ती अंदर साहब रोना कुरान के धोने इंकारी डाला हैं, हुआ था। मुफ्ती साहब कुरान के इंकारी हैं, मुफ्ती 86 साहब कुरान के किताबें रोना इंकारी हैं। धोना ही है। नाउजुबिल्लाह, मुफ्ती साहब कुरान 86 करीम की बात किताबें नहीं रोना मानते। धोना है कुरान बस। करीम कहता है बदला वही बताइए, दो, बदले के 86 बराबर बदला दो, किताबें रोना जितना धोना किया ही है। जुल्म किया गया उतना बदला दो। जवाब मुफ्ती तो साहब देना। जितना जुल्म किया गया उतना बदला दो। आपने कहा जी मुफ्ती रोना साहब धोना जितना डाल दिया, मैंने तो मुफ्ती मिर्जा साहब साहब जितना की जुल्म किताबें किया सुना गया, रहा हूँ, मुफ्ती साहब तो ये जितना रोना जुल्म धोना किया है। गया, मुफ्ती साहब जितना जुल्म किया गया उतना बदला लें, उससे ज्यादा ना लें। जिस तरीके से मैंने बीच में टोका ना कुली ऐसे तौर जुल्म पर, किया उसी करे तरीके ना, से ये टोके। जाना मैं रोनी कादियानी धोनी हूँ। ना डालें, एक अरसे का जुल्म कर मुस्तशरिकीन रहे की हो तरह रोनी धोनी ना कादियानियों, डालें। ना मुफ्ती जुल्म साहब किया करे ना, मुस्तशरिकीन की ये तरह। जुल्मो सितम मुफ्ती साहब छोड़ के। रिकॉर्डिंग चल रही है, सब आपकी हालत देख रहे हैं। हाँ जी, अब आपके जुल्मो पास सितम जवाब सुनने की छोड़ेंगे हिम्मत नहीं, नहीं आप है, लोग आपके सुधरेंगे पास नहीं। जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है। देखिए मुफ्ती दर साहब किधर मैंने हो आपसे रही है कहा आप था ना लोग, कि दर आप किधर हमें तो कभी कहते इधर हैं कि जाते हैं, जिस हम मुल्क में जवाब जाते देते हैं हैं आगे वो, से गलत तरीके से, जैसे आप रोना धोना यहूदियों शुरू को कर चुके हैं। यहूदी एक ये अरसे सब तक आपकी हालत बरकरार देख रहे हैं। रहे, उनको कोई मुस्तशरिकीन की ठिकाना तरह ना रोना मिला। धोना आपने शुरू कर आप दिया लोगों है। की वो देखो अब ना, जुल्म सितम अब करते हैं, आपके अंदर ये जवाब ऐसे सुनने की होता है। हिम्मत नहीं है, आप 50 और लोगों के 5 का गिलाफ जवाब सुनने जूतियां की हिम्मत पड़ रही नहीं हैं है। हर जगह से। आप मिर्जा साहब की बात अब सुनने की हिम्मत नहीं रखते हैं। ये जब मिर्जा आपको साहब मिर्जा की साहब की बात बात का सुनाए ना, जवाब मैं दिया तो जाए ना, सुनने आप के लिए सुनने की तरस हिम्मत नहीं गया रखते हूँ कि हैं। मिर्जा आप में साहब की तप्पड़ ही नहीं बात है के सुनने बारे का। में बात बताएं तो आप रोना हमें। धोना शुरू कर चुके, कोई बात नहीं, आप रोए धोए चले, आप पहले बोल लें फिर मैं चुप बोलूंगा। बोले जी, मिर्जा साहब की बातें सुनाए नहीं हमें, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मिर्जा साहब की बातें सुनाएं, आप सुनाते आप नहीं हैं। सुनेंगे तो सुनाऊंगा ना। आप रोनी धोनी मिर्जा बंद करें, साहब की रोनी धोनी बंद करें, बातें, फिर मिर्जा बात साहब की करूंगा। बातें मैं नहीं, जब रोनी धोनी पूछता हूँ बंद करें, आप लोग रोना धोना शुरू कर देते रोनी हैं। धोनी बंद करें, रोनी धोनी बंद करें। मिर्जा मैं साहब की जब तक बात आप रोनी आप धोनी मसीह बंद मऊद करेंगे मांग मैं रहे हैं ना, आप मैं अपनी जवाब नहीं गुफ्तगू के दूंगा। अंदर कितनी दफा आपने मिर्जा साहब को मसीह मऊद कहा है? मैं जब कहता हूँ कि मिर्जा अलैहिस्सलातु साहब वस्सलाम। कहते हैं जी मैं तो मसीह मऊद इस तरीके से बना हूं कि मैं 2 साल तक औरत बना हुआ था और बाद में मुझे 10 महीने का हमल ठहर गया। मुफ्ती साहब मैं कानू क्या सी ना तुसी इस्लाह नहीं करनी है, तुसी तो भाई इस्लाह ये नहीं करनी, आपकी तुसी मेरे किताबें साथ ही बात से है, एतराज आप करने ने है। सच्चाई को कैसे ਤੁਹਾਡਾ बदल मकसद यही सकते है, हैं? तुसी वीडियो ਜਿਹੜੀ सच्चाई को 153 कैसे बदल सकते हैं 153 आप? सच्चाई को ਤੁਸੀਂ कैसे बदल 153 154 सच्चाई को 155 ਤੇ कैसे बदल ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ सकते ਗਏ हैं ਹੋ ਨਾ आप? ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ बताइए ਗਿਣਤੀ ना, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ सच्चाई को ਮਕਸਦ कैसे ਤੁਹਾਡਾ बदल सकते हैं मेरे भाई? ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ आप ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, सच्चाई ਤੁਹਾਡਾ को कैसे ਮਕਸਦ बदल ਵੀਡੀਓ सकते ਅਪਲੋਡ हैं? ਕਰਨ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ बस ਹਰਾਮ ये ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। आखिरी ये ड्रामा है जी, हाँ जी, कैसे कमा रहे हो ये रोजी ਤੁਹਾਨੂੰ रोटी के ਤਕਲੀਫ लिए? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ आखिरी ਉੱਤੇ ड्रामा ਇਹ ये ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ कादियानियों ਜਮਾत का ਚੰਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, आखिरी ਉਹ ड्रामा ਸਾਨੂੰ ये ਕਿਉਂ है ਨਹੀਂ कि तुम ਦਿੰਦੀ है? रोजी रोटी ਉਹ के लिए उम्रे कर ਦੇ रहे हो। पैसे ਸਾਨੂੰ क्यों नहीं देती है? मतलब जवाब यार यही होता साढ़े है पे ना, उम्रे तो आखिरी ड्रामा ये होता है जी तुम रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, आखिरी नहीं, ड्रामा ये। आप चुप ही नहीं कर रहे। हाँ जी, आप चुप तो करेंगे तो मिर्जा जवाब साहब की दूंगा जो ना। रोजी ਤੁਹਾਡੀ रोटी का मैंने अभी आपको ਤੁਹਾਡੀ बताया नल्लो वो नहीं आप चुप हो रही है, बताएं ਤੁਹਾਡੀ नहीं ਜਿਹੜੀ है। ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ सबसे ਚੁੱਪ ही नहीं ज्यादा हो रही। तो मैं कितों रोजी जवाब रोटी दूंगा? के लिए मिर्जा ਤੁਸੀਂ साहब चुप ने ਕਰਦੇ नहीं पे हो, कोशिश की ਤੁਸੀਂ है चुप पूरी करो, जिंदगी। ਤੁਸੀਂ चुप करो, रोजी ਤੁਸੀਂ रोटी चुप के करो। लिए वो मुफ्ती जनाब साहब चुप करो, दावा मुफ्ती साहब नबूवत की चुप जाए करो। और मुफ्ती साहब मैं दुकान जवाब खुली देने की लगा, जाए। चुप करना है। हाँ जी, मुफ्ती साहब मैं जवाब देने लगा, चुप करना।
मैं जवाब देने लगा कहा कि जब आप मेरे सवालों के जवाब जवाब नहीं देना, वो जवाब ही मैं देना। मुफ्ती साहब भूल गए ने जवाब किने देना, मैं जवाब देना सी, बात हो रही थी उसका जवाब मैं देना सी, तुसी जवाब नहीं सी देना, भूल गए हो। मुफ्ती साहब बादाम खाओ, का जवाब दें। टोपी ला के ना सिर में थोड़ी जी हवा लाओ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹਵਾ ਲਾਓ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ।
मैं जवाब दूंगा, थोड़ी इजाजत है? जी इजाजत है, 5 और 50 का बताइएगा। हाँ जी, मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्तिदा में जब ये किताब तालीफ की गई थी उस वक्त इसकी कोई और सूरत थी, फिर बाद इसके कुदरत इलाहिया की नागहानी तजल्ली ने इस आकर इबाद को मूसा की तरह एक ऐसे आलम से खबर दी जिससे पहले खबर न थी। यानी ये आजिज भी हजरत इब्ने इमरान की तरह अपने ख्यालात की शब तारीख में सफर कर रहा था कि एक दफा पर्दा गैब से इन्नी अना रब्बुका की आवाज आई और ऐसे असरार जाहिर हुए कि जिन तक अकल और ख्याल की रसाई न थी। अब इस किताब का मुतवल्ली और मुतहम्मिम जाहिरन व बातिनन हजरत रब्बुल आलमीन है और कुछ मालूम नहीं कि किस अंदाजा और मिकदार तक इसको पहुंचाने का इरादा है। और सच तो यह है, मुफ्ती साहब मैं ये वो बात बयान कर रहा हूं जो मैंने अपने अल्फाज में बयान की थी, जो मिर्जा साहब अब फरमा रहे हैं, और सच तो यह है कि जिस कदर इसने जिल्द चहारुम तक अनवारे हकीकत इस्लाम के जाहिर किए हैं ये भी इतमाम हुज्जत के लिए काफी हैं। ब्राहीन अहमदिया हिस्सा चहारुम रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 1 आखिरी सफा। मुफ्ती साहब मिर्जा साहब तो आपकी बात का जवाब पहले ही दे चुके हैं, एतराज करने का हक नहीं बनता। नंबर 1, 5 और 50 आपके 7 एतराज थे जिनमें से 5 में से 1 का मैंने 7 में से 1 का दे दिया कि मैंने ऐसे अनवारो तजल्लियात दूंगा कि वो जनाब मुफ्ती साहब जिल्दों के अंदर ही अनवारो तजल्लियात पूरे हो जाएंगे। ये तो फिर अच्छा ये चीज आप बात करने पहले, अब आपने 1 to 1 लेके चलनी है ना, चलते हैं बात करें जी। तो पैसे लेते वक्त उनको याद नहीं आया अनवारो तजल्लियात फेरूंगा 4 अंदर, पैसे लेते वक्त उन्होंने जनाब ले लिए। और जो आज के दौर के करोड़ों रुपया बनता है, मिर्जा साहब ने लिस्टें बना के बताई हैं, मैंने इससे इतने लिए, इससे इतने लिए, जो आज के दौर के अंदर कन्वर्ट करे करोड़ों रुपया बनता है। तो जनाबे मन उस वक्त अनवारो तजल्लियात कहां पर थे? जब नोट लेने की बारी आई, जब रोजी की बारी आई, तो उस वक्त ये अनवारो तजल्लियात कहाँ थे? जो गल मुके ना मैनू कह देना, मैं फिर गल करूंगा। जी जी, तो इसका जवाब दे दें जरा, ये अनवारो तजल्लियात उस टाइम पहले पैसे दसो मेरी गल मुक गई है, मैं फिर बोलांगा, मैं पहले जवाब नहीं दूंगा। जी जी, ये अनवारो तजल्लियात ये बताइएगा, पहले क्यों नहीं याद है? पीछे नहीं बोलना, फिर हूँ पीछे तो नहीं बोलोगे? जी जी, वादा करो। नहीं जी नहीं, वादा करो, पीछे नहीं बोलोगे। बोलते हैं तो फिर मुझे भी बोलना पड़ता है ना। आप बोल नहीं, पहले वादा करें ना। मैंने अच्छा, अब मेरी चुप करके बात सुननी है पहले। अब मतलब कि आप कानून जो एक बात सुननी है, खाली एक बात नहीं मुफ्ती साहब, एक बात सुननी है। जो मुफ्ती साहब ये आवाम फैसला करेगी। मैं ऑडियो आपकी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुफ्ती साहब, मैं स्क्रीन तो रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आवाम फैसला करेगी, क्योंकि जब मैंने आपको बीच में टोका था आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई थी, मैंने आपकी बात रिपीट करवाने के लिए आपको बीच में टोका था। मुफ्ती साहब आप एक मौजूद शख्सियत है, मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ, मेरी नजर में आपकी बात की अहमियत है। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई है, आप बात रिपीट कर दें, मुझे आपकी बात तब समझ में आएगी। आपकी बात मुझे समझ में नहीं, लेकिन आपने उसको मुझे कहा कि मैंने आपको बीच में टोका है, तो अगर आपकी नजर में वो टोकना है तो फिर ये तो टोकना नहीं है, कुछ और इसके लिए अल्फाज में इस्तेमाल करूं मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं घर में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ये टोकना नहीं है ये मुझे, क्योंकि आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई थी, मैंने रिपीट करने की दरख्वास्त की थी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, लेकिन आप फिर भी मुझे टोक रहे हैं। वो अल्फाज के जो आप सुन नहीं सकते, मिर्जा साहब ने छापे हैं, किताबों के अंदर छापे हैं। मैंने तो नहीं कहा मैं सुन नहीं सकता हूँ। हाँ जी, मैंने तो नहीं कहा मैं सुन सकता हूँ, नहीं सुन सकता। आपकी खवातीन ये नहीं पढ़ती, ये नहीं पढ़ती। नहीं मैंने आपसे बात की, मैं यही तो आपसे उस टाइम पे बात कर रहा था। नहीं आप मेरी सुने ना, मेरा बाप जवाब सुने। अब मेरी टर्न है मुफ्ती साहब, अब मेरी टर्न, नाउ इट्स माय टर्न मुफ्ती साहब, यू मस्ट बी क्वाइट मुफ्ती साहब, यू शुड बी क्वाइट नाउ। मुफ्ती साहब आपको खामोश होना पड़ेगा के नीचे। आपको मुफ्ती साहब ऐसे बात नहीं चलती है, ये आपका अखलाकी तरीका है। पापा जान, अब्बू जान, मैं बताता हूँ मैंने आपको क्या बात कही थी। मैंने आपको क्या बात की थी, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं आपको उस बात का जवाब देता हूँ, मैं आपको उस बात का जवाब देता हूँ। मैंने आपको जवाब भी तो देना कि भाई जवाब सुनना है, कभी नहीं पूछा। सुनने की हिम्मत है, सुनने की हिम्मत है, सुनने की हिम्मत है। मुफ्ती साहब आप में हिम्मत तो है नहीं किसी की बात सुनने की। आप जवाब मिला ले तो यार लोगों को ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਐਵੇਂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਮ ਖਾਨ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ डाली है ना, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰ रहे हो आपने डाली है, वीडियो बनाने वास्ते कॉल कर, बार बार तो नहीं ये मैंने ओहो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ आपकी बहुत अहमियत है, आपको नहीं पता मेरी नजर में मुफ्ती मुबशर रजा खान बरेलवी साहब की बहुत अहमियत है, जो उम्रे की टिकटें वगैरह बांटते हैं, मुझे नजर में उनकी बहुत अहमियत है। बात ही नहीं सुन रहे, बार बार टोक रहे। मैं आपको जवाब दे तो रहा हूँ, मैं आपको मैं आपकी अहमियत की तो बात कर रहा हूँ कि आपकी इतनी अहमियत है मेरी नजर में, आपकी मेरी नजर में इतनी अहमियत है कि मैं आपकी बात को रिपीट करवाना चाह रहा था कि जब रिकॉर्डिंग के अंदर मिसाल के तौर पर रिकॉर्डिंग के अंदर जब ये बात आएगी ना, जब रिकॉर्डिंग नहीं मुफ्ती साहब बात सुने, जब रिकॉर्डिंग के अंदर ये बात आएगी ना यार शेख मुबारक अहमद ने मुफ्ती मुबशर बरेलवी के सवाल का जवाब नहीं दिया, तो उसकी वजह समझ में आएगी कि यार शेख मुबारक अहमद ने मुफ्ती मुबशर बरेलवी से ये कहा था कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, इस बात को रिपीट कर दे। लेकिन मुफ्ती मुबशर बरेलवी उस पर कहता है कि तुमने मुझे बीच में टोक दिया। यार टोकना होता है, तो मैंने टोका मार दिया आपकी गर्दन के ऊपर, टोका मैंने आपको अजीब बात। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ महफिल 'ਚ बैठे हो, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ बैठे हो, ਮੈਨੂੰ समझ नहीं आ रही है। मदीने मुनव्वरे 'ਚ बैठे हो तो फिर मेरी समझ तो बाहर है कि ਤੁਹਾਡੇ मदीने मुनव्वरे जवाब क्यों नहीं पा रहे। कितना टाइम चाहिए? मैं सुनता हूँ, मुझे टाइम बता दें कितना टाइम चाहिए आपको। बोलूं जी टाइम बता दें पहले, कितना टाइम चाहिए? नहीं ये तो जाहिर सी बात है, अब आपने जब सवाल करते हुए टाइम नहीं बताया तो फिर मैं जवाब करते हुए टाइम क्यों बताऊं? आधा घंटा चाहिए, 1 घंटा चाहिए? क्यों? किस चीज की मुनाजरा हो रहा है? नहीं मुनाजरा करवाया मुफ्ती साहब, मुनाजरा तय किया मेरे से, टाइम तय करूं मैं? मुकालमा ही हो रहा है ये, और क्या हो रहा है? किसने कह दिया डिबेट हो रही है? जी डिबेट, कौन सी डिबेट का टाइम तय किया था आपने? डिबेट नहीं, कोई डिबेट, ये तो मेरी एक आम गुफ्तगू हो रही है आपके साथ, आपके साथ मेरी एक आम गुफ्तगू हो रही है। नहीं आपस में ठीक है गुफ्तगू हो रही है, लेकिन टाइम तय नहीं हुआ था। टाइम बिल्कुल हो रही है, चले डिबेट हो रही है, टाइम तय नहीं हुआ था, असूल तय नहीं हुए थे, ठीक है। लेकिन आपने ये कहा था कि आप बीच में बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो बड़ी मेहरबानी आपको हिदायत दे शिफा के साथ साथ, आमीन सबको हिदायत दे, इन्हें सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। मजदूरी करनी होती है, अभी मैंने काम के लिए निकलना है। नहीं मैं तो अभी 3 दिन हुए लेटा हूँ, मुझे तो ये 2 दिन आवाजार हो गया, मैं परेशान हो गया लेटा हुआ क्यों, आगे के 5 दिन मुझे कैसे गुजरना है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं अब हम इंसान हैं, इंसानों पे परेशानी आती है। अब मेरा जवाब नहीं सुनना मुफ्ती साहब ने, भाई मैं अभी मुफ्ती साहब ने जवाब कारोबार नहीं के लिए सुना। निकलने लगा हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, मैं चंदे नहीं लेता। तो वही उम्रे की टिकटें हैं, उम्रे के ग्रुप, मैं आपके स्टेटस मैंने सारे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, आपकी वीडियो के साथ अपलोड करूंगा मुझे अगर मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। नहीं आप छुट्टी ना करें, आप बेशक शाम को आपसे छुट्टी चाहिए, आपसे इजाजत मिलेगी तो आगे जाऊंगा मैं। अच्छा नहीं वो मैं वहां की छुट्टी से मुझसे इजाजत क्यों मांग रहे हैं? आपके बच्चे आपके घर वाले साहब इंशाल्लाह आपसे फिर तफसीली गुफ्तगू होगी। आज की का सेशन बहुत अच्छा था। एक जाते जाते ना एक हदीस सुनते जाएं, सिर्फ एक हदीस है, पहले हवाला दे, हदीस हवाला तो हवाला मिशकात शरीफ की हदीस है। हाँ जी हवाला मिशकात शरीफ में किताबुल हज बाब किस्सा हिज्जतुल विदा, ठीक है। इसमें है, तर्जुमा मैं पढ़ूंगा क्योंकि अरबी के आराब नहीं लगे हुए हैं और मैं आलम नहीं हूं कि मैं अपनी तरफ से आलाब लगा लूं कि अगर मुझे इस मामले की पहले खबर होती तो मैं अपने साथ कुर्बानी के जानवर ना लाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जब हज के लिए तशरीफ लेके जा रहे थे ना, तो उस वक्त अपने साथ जानवर लेकर गए, लेकिन उस साल फिर हज नहीं किया, उम्रा करके तशरीफ वापसी ले आए थे, ठीक है जी। तो ये तो फिर उनको पहले खबर ना थी कि हज नहीं करना, मैंने सुन ली है। अब आप जो है ना मुझे छुट्टी मिल जाएगी? हाँ जी बिल्कुल मैंने आपके सामने हदीस रख दी बस। मुबारक अहमद साहब, फिर मुलाकात होगी किसी अच्छे मौजू के साथ इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नहीं इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। जी अच्छे मौजू, यही गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह जी।